Okay guys, today we are going to discuss about different kind of analogies appearing in the CSS, UPSC and MOD competitive examinations. First of all, we will try to understand what is analogy and its definition. So analogy means correspondence. In questions based on analogy, a particular relationship is given, and another similar relationship has to be identified. It means that a particular relationship will be given in the examination, and we have to identify the similar kind of relationship between different kind of words given below in the question being asked. So now I will give the different kind of relationships which are being asked in the analogy. So first of all, the relationships asked is, first one is instrument and measurement. So in this kind of relationship, you will be given the instrument and you have to tell the what purpose it is used for. For example, barometer is used to measure the pressure, and we know that thermometer is used to measure the temperature, and sphygmomanometer is used to measure blood pressure. Now you have to tell what purpose anemometer is used. It is very important question that has appeared many times in competitive examinations. So its answer is wind speed. Anemometer is used to measure the wind speed. Okay guys, if you like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon to have the latest updates. Moving to our next slide, and our next relationship is quantity and unit. You will be given a quantity and you have to tell its unit. So for example, there is a length, its unit is meter. So mass, its unit is kilogram. Next is force and its unit is Newton. And energy, its unit is joule. And now you have to tell what is the unit of resistance. So its unit is ohm. So our next is, what is the unit of pressure. So for pressure, for the pressure quantity, the unit is पास्कल. ठीक है, तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वांटिटी प्रेशर है उसका यूनिट पास्कल होगा. तो हमारा नेक्स्ट जो रिलेशनशिप जो हमारे पास पूछा जाता है एनालॉजी में, वो होता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप का. यानी कि एक इंडिविजुअल है और उसका ग्रुप क्या कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, सेलर्स इंडिविजुअल्स हैं, इनका ग्रुप क्रू होता है. और इसी तरीके से कैटल एक है, इसका जो हमारे पास क्रू यानी कि बहुत सारे कैटल का ग्रुप जो होता है वो हमारे पास हार्ड होता है. नेक्स्ट इज़ ग्रेप्स, और इसका जो हमारे पास पूरा एक ग्रुप होता है उसे हम बंच कहते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स. सो नेक्स्ट इज़ द शीप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द ग्रुप ऑफ शीप इज़ कॉल्ड फ्लॉक. एंड नाउ व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ सिंगर इज़ कॉल्ड, इट इज़ कोरस. कोरस कहते हैं जो गाने मिलके इकट्ठा गाना गाने वालों का जो ग्रोह होता है उसे हम कोरस कहते हैं. नेक्स्ट इज़ मैन, एंड इसका जो हमारे पास ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं क्राउड. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ आवर relationship of male and female. So we will be given a male and its female will be asked about. For example, horse, its female is mare. सिमिलरली डॉग, इसकी जो फीमेल होती है वो हमारे पास बेच होती है. एंड द स्टैग, इट्स फीमेल इज़ डॉग. और नेक्स्ट हमारे पास है लाइन, इट्स फीमेल इज़ लाइनेस. नेक्स्ट इज़ टाइगर, इट्स फीमेल इज़ टाइग्रेस. सो what would be the female of nephew? If you have someone in relation which is nephew, so what would be its counterpart or its female? It would be niece. Niece is the female or the counterpart of the nephew. So what is the female of drone? Drone कहते हैं मादा नर मक्खी को. तो इसकी जो हमारे पास female होगी, that would be bee, B-E-E-B. And what is the female of gentleman? The female of gentleman would be lady. Lady would be the female of gentleman. So what is our next? Next is relationship individual and class का हमारे पास है. So individual हमारे पास lizard है. Which class it belongs to? It belongs to reptile. रेप्टाइल हमारे पास एक ग्रुप क्लास होता है जो कि हम किंगडम एनिमेलिया में हम जो है ना डिफरेंट जो हमारे पास इंडिविजुअल्स आते हैं, जिसे हम बर्ड्स हों या हमारे पास मैमल्स हों, उनको हम प्लेस करते हैं. तो हमारे पास जो लेजर्ड है वो इनके जो ग्रुप है, इसको हम इंडिविजुअल्स को हम रेप्टाइल की क्लास पे प्लेस करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास मैन है. मैन मैमल क्लास में आता है.
So in which class ostrich comes? So ostrich comes in the class of bird, यानी कि ostrich को हम birds की क्लास में प्लेस करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनशिप एनालॉजीज में कहा पूछा जाता है वो स्टडी एंड टॉपिक का है, यानी कि आपको किसी एक सब्जेक्ट बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो किस चीज़ की स्टडी से मुतालिक होता है। फॉर एग्जांपल you have botany. Botany is the study of plants. And you have entomology. Entomology is the study of insects. So what purpose hematology is studied for? It is studied for the blood. Blood की स्टडी को हम hematology कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो वर्कर एंड टूल का है। वर्कर एंड टूल में क्या हो गया जी, आपके पास ब्लैक स्मिथ है तो वो जो टूल यूज़ करता है वो हमारे पास एंविल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया वुड कटर। वुड कटर जो है वुड कटर हमारे पास जो है वो उसका टूल कौन सा है, एक्स। उसके बाद हमारे पास वॉरियर है, वॉरियर का टूल कौन सा है, स्वॉर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑथर। ऑथर का टूल क्या होता है, ऑथर का टूल होता है जी पेन। पेन इज़ द टूल यूज्ड बाय द ऑथर। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ रिलेशनशिप, जिसमें हमारे पास आता है टूल एंड एक्शन, यानी कि कौन सा टूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ऊपर हमारे पास था वर्कर और उसका टूल क्या है, नीचे हमारे पास है टूल दिया हुआ गया होगा और ये पूछा जाएगा कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव नाइफ, नाइफ इज़ यूज फॉर कटिंग। नाउ यू हैव स्पून विच इज़ यूज फॉर फीडिंग। नेक्स्ट इज़ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लाउड स्पीकर इज़ यूज टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़ को बढ़ाने के लिए हमारे पास लाउड स्पीकर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वर्ड है वो बटर। अब ये बटर क्या है, बटर हमारे पास किससे बनता है, ये हमारे पास बनता है मिल्क से, ठीक हो गया। बटर हमारे पास मिल्क से बनता है। नेक्स्ट है वॉल। तो वॉल हमारे पास किस चीज़ से बनती है, ब्रिक से बनती है। यानी कि आपको रिलेशनशिप समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास एक जिसे हम कहते हैं कि वो मॉडिफाइड थिंग है फ्रॉम द बेसिक थिंग, ठीक है। तो आपको जिसे हम कहते हैं कि वॉल जो है वो हमारे पास ब्रिक से बन रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल कम्स फ्रॉम सीड। अब नेक्स्ट हमसे ये है कि आपके पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास एक होल चीज़ है और एक उसका पार्ट है, यानी कि पेन कंप्लीट एक हमारे पास एक टूल आ जाएगा और उसके पास उसका पार्ट जो है वो निब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बुक। अब बुक मुकम्मल होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो मिलके बुक बनाते हैं। इस तरह से अब आपके पास जो एक दिया जा रहा है यहाँ पर एक रिलेशनशिप पूछा जा रहा है वो है सिनोनिम्स का, यानी कि सिनोनिम्स का आप रिलेशनशिप ये देखें कि ब्लेंड है ना, तो ब्लेंड को हम जो है इसका सिनोनिम में हम मिक्स भी लिखते हैं। इसी तरीके से वेकेंट का फिर हमारे पास सिनोनिम क्या आ जाएगा, वेकेंट का सिनोनिम हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है एंटोनम। आप देखें यहाँ पे अटैक है, अटैक का जो आपके पास जो एंटोनम है वो डिफेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डीप। डीप यानी कि बहुत गहरा होना। जो इसका ऑपोजिट है या इसका एंटोनम है वो इसका शैलो होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास है क्रिएट। क्रिएट होता है किसी चीज़ को बनाना और डिस्ट्रॉय होता है उसको तबाह करना। So guys, I hope you have understood about the different kind of relationships being asked in UPSC, CSS and MOT examinations. These are very important relationships. If you try to understand and make practice, I hope you will get full marks. Thank you very much for the today's video. I hope you will try to understand this topic, and please do subscribe the channel and hit the bell icon to have the latest updates. Thank you very much.